اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں اور ناظرین، خالد مقبول صدیقی این248، مصطفیٰ کمال 242 اور 247 سے الیکشن لڑیں گے، فاروق ستار 241 اور 244 جبکہ ارشد وہرا 240 سے میدان میں اتریں گے۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 18 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ ٹکٹوں کی تقسیم میں بڑی کوتاہی بھی سامنے آئی ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ ایم کیو ایم نے عام انتخابات میں کامیابی کے لیے کمر کس لی۔ قومی اسمبلی کی 18 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ حلقہ این 232 پر آسیہ اسحاق، 233 پر جاوید حنیف، 234 پر محمد ابو بکر، 235 پر اقبال محسود کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ این 236 پر حسان صابر، 237 پر رؤوف صدیقی، 238 پر صادق افتخار اور 240 پر ارشد وہرا بھی ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار حلقہ این 241 اور 244 جبکہ مصطفیٰ کمال 242 اور 247 سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ہمایوں عثمان این 243، حفیظ الدین 245 اور سید امین الحق 246 پر ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی این 248، احمد سلیم صدیقی 249 اور فرحان چشتی 250 پر ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے۔ شعیب مختار CT21۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 15 سالوں سے کراچی کو لوٹ رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے دونوں جماعتوں پر بڑا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ کراچی کے شہری ایک بار ہمیں ووٹ دے کر دیکھیں، سودے بازی نہیں کریں گے، شہر کا نقشہ بدل دیں گے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ حافظ نعیم کا مشن کراچی۔ جماعت اسلامی نے شہر میں انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی۔ گلشن اتوار بازار گراؤنڈ میں خواتین ورکرز کنونشن، حافظ نعیم کا مخالفین پر تاک تاک کر وار۔ کنونشن سے خطاب میں حافظ نعیم بولے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ 15 سالوں سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کی، جلد قبضہ ختم کرایا جائے گا۔ عوام موقع دیں، ہم سودے بازی نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ اس شہر کراچی کے لوگ اتنا مینڈیٹ جماعت اسلامی کو ان بلاک دے دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون صوبائی حکومت بناتا ہے اور اگر بناتا ہے تو کیسے چلاتا ہے۔ ہم بیچیں گے نہیں اس شہر کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں بیچیں گے۔ ہم اس شہر کی ٹرانسپورٹ، اس شہر کے پانی، اس شہر کی گیس، اس شہر کی بجلی اور اس شہر کی تعلیم اور خاص طور پر آئی ٹی کی ایجوکیشن، اس پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ کراچی نے 157 ارب روپے جبکہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے صرف 2 ارب ٹیکس دیا ہے۔ پورے ملک میں 157 ارب روپے 6 مہینے میں جمع ہوئے ہیں۔ ان 157 ارب روپے میں سے 57 ارب روپے صرف کراچی کے لوگوں نے جمع کرائے۔ پورے کراچی کا تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس اور 11 کروڑ کی آبادی کے پنجاب کا ٹیکس برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں کا ٹیکس اور وہاں کا ٹیکس برابر ہے۔ اور پھر چھوڑیے اس کو، تنخواہ دار تو پھر بھی دے رہا ہے، جاگیرداروں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، بڑے بڑے زمینداروں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، صرف 2 ارب روپے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بنو قابل کے جلد گھریلو خواتین کے لیے پروگرام کی شروعات کریں گے۔ شہر کراچی کی شب و روز خدمت جاری رکھیں گے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ طاہا ملک CT21۔ اور اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم نہ بنے تب بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ سعید غنی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا واحد حل صرف پیپلز پارٹی ہے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ ڈالو نے بھی عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی۔ این 247 اور PS 104 میں ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ کارکنوں سے خطاب میں پی کراچی کے صدر سعید غنی بولے، اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم نہ بنے تب بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ کراچی کے مسائل کا واحد حل پیپلز پارٹی ہے۔ اس بار پیپلز پارٹی شہر کی سب سے تگڑی جماعت ہے۔ جو جا کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت آپ کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی لا سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی اس ملک کے اور اس شہر کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آپ اس وقت شہر میں سب سے مضبوط جماعت کے کارکن ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشستیں قومی اسمبلی کی ہم جیتیں گے، کوئی اور جماعت نہیں جیتے گی۔ اس موقع پر حلقے کے امیدواروں نے بھی خطاب کیا اور الیکشن جیتنے کے بعد مسائل حل کرانے کے دعوے کیے۔ نائجیریا ہو، چاہے PCHS ہو، چاہے سوجا بازار ہو، انشاءاللہ تعالی جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ کی نمائندگی کی جائے گی، آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ میں کبھی مایوس نہیں کروں گا اور جو ذمہ داری ہے آئندہ مجھے دیں گے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔
और आप में से किसी को भी मायूस नहीं करूंगा। आप जब भी मुझसे राब्ता करेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा करूंगा। कारकुनों से खिताब करते हुए सईद गनी का मजीद कहना था कि कराची वालों को ये समझने की जरूरत है कि अगर इनकी मुंतखब करदा जमात वफाक में होगी तो कराची के मसाइल ज्यादा तेजी से हल होंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी टिकट जमा कराने का सिलसिला जारी है। सूबाई असम्बली की नशिस्त 112 बल्दिया से इंतखाबी मार्का लड़ने के लिए तैयार पीटीआई पार्टी उम्मीदवार आसिफ मूसा ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। आसिफ मूसा रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। हाथों में पार्टी परचम थामे कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी टिकट जमा कराने का सिलसिला जारी है। सूबाई असम्बली की नशिस्त 112 बल्दिया से इंतखाबी मार्का लड़ने के लिए तैयार पार्टी उम्मीदवार आसिफ मूसा ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। आसिफ मूसा रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। हाथों में पार्टी परचम थामे कारकुनान की बड़ी तादाद भी उनके हमरा थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई असम्बली उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करवाने का आज पहला रोज था। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की जानिब से पार्टी टिकट जमा करवाने का सिलसिला जारी है। PS 112 बल्दिया से पीपल्स पार्टी के टिकट पर आसिफ मूसा ने टिकट जमा कराया है। ज़िला इलेक्शन में टिकट जमा कराने के लिए आसिफ मूसा रैली की सूरत में बल्दिया से रवाना हुए। सैकड़ों कारकुनों पार्टी परचमों के साथ रैली की सूरत में ज़िला इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी टिकट जमा कराने का सिलसिला जारी है। सूबाई असम्बली की नशिस्त 112 बल्दिया से इंतखाबी मार्का लड़ने के लिए तैयार पार्टी उम्मीदवार आसिफ मूसा ने पार्टी टिकट जमा करा दिया है। आसिफ मूसा रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। हाथों में पार्टी परचम थामे कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। NA 242 के इलाका कायम खानी कॉलोनी में गैस की शदीद किल्लत। इलाका मकीन 2 बरस से परेशान, कहते हैं कि लाइनें ब्लॉक होने के बायस गैस घरों तक नहीं पहुंच रही। यूसी चेयरमैन रहीम शाह के मुताबिक अपनी मददाब के तहत काम जारी है। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। कराची के हल्का NA 242 के इलाके कायम खानी कॉलोनी में गैस नापैद। मकीन कहते हैं 2 साल से परेशानी का शिकार हैं। मकीन कहते हैं लाइनें ब्लॉक होने के बायस गैस घरों तक नहीं पहुंचती। मुख्तलिफ मुकामात पर पाइप से पानी आने लगता है। SSGC की नाअहली के बायस मेन लाइन से गैस सार्फिन तक नहीं पहुंच रहा। गैस कंपनी को सैकड़ों शिकायत और एहतजाज किए मगर कोई अजाला नहीं। इतना टाइम हो गया, हम लोगों ने तो बिलें भी ऑनलाइन निकलवा के जो है वो भी सबमिट करवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गैस नहीं आ रहा है। और इससे पहले भी कंप्लेंट करवाई थी, इससे पहले मीडिया वाले भी बुलाए थे मेरे भाई लोगों ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस पर भी। इधर जाते हैं उधर कंपनी में जाते हैं, पुकार के आते हैं, कोई भी नहीं सुनता। हम तो गए, हमारे को तो सिलेंडर जलाने की भी नहीं है कि सिलेंडर इतना महंगा किधर से जलाएं। जाते रहे, ये जो नीचे यूसी का दफ्तर है बड़ा, उसमें बहुत दफ़ा गए हैं। वो लोग भी यही बोलते हैं कि हमारी मजबूरी है, पीछे से ही नहीं आ रही, हम क्या करें। अपना टाइम तो गुजारा है ना, बच्चों को पेट तो भरना है ना। मगर उनके पास भी गए, बोल बाल के आगे, उनको सुनाई कहाँ आ जाएंगे। अब वो मीटर भी लेके कोई उतारे। यूसी चेयरमैन रहीम शाह का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत खुदाई करके गैस कंपनी से टाउन चालान भी वसूल नहीं किया। गैस कंपनी का आधा काम टाउन के तहत कर दिया, लेकिन कंपनी वादे के मुताबिक गैस इलाके में नहीं आई। अभी ये हमारे रोड का जो गेड़ा है कारपेट, ये इस वजह से रुके हुए कि जगह जगह हमने खड्डे खोदे हुए। गैस कंपनी वालों ने कल हमें गाड़ियाँ दी कि ये 1 हफ्ते तक यहाँ काम करेंगे, जो आज इमरजेंसी में बल दिया गया। अभी अमित साहब से मेरी यही बहस चल रही थी कि आपने मुझसे ज़बान की थी कि 1 हफ्ते तक जब तक गैस का मसला हल नहीं होगा गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। जो आज मैं सुबह आया तो गाड़ियाँ आज फिर गायब थी। अभी मैं उनके साथ राब्ते में गाड़ियाँ भेजे। अब सबको पता है नाहिल कंपनी जैसे के इलेक्ट्रिक हो गई और एक गैस कंपनी हो गई। कायम खानी कॉलोनी की मरकजी सड़क पर गैस पाइप लाइन के लिए गड्ढे खोदे हैं। गैस के मसाइल को हल नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को 8 स्नॉर्कल्स का तोहफा मिल गया। तमाम गाड़ियाँ निगरान वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला के मेयर्स के हवाले की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि इंडोनेशिया से आने वाली स्नॉर्कल्स 1 अरब 35 करोड़ रुपए की हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट।
सिंध भर में आतिशगी के बढ़ते वाकयात, निगरान सूबाई हुकूमत का बरवक्त इकदाम। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने वजीर बल्दियात मुबीन जमाली और वजीर इत्तलात अहमद शाह के हमरा 8 स्नार्कल्स मेयर कराची और सिंध के मुख्तलिफ इजला के मेयर्स के हवाले कर दी। तकरीब कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में मुनक्किद हुई। खिताब में निगरान वजीर आला ने कहा कि जर्मनी की कंपनी के ताउन से तमाम स्नार्कल्स इंडोनेशिया में तैयार हुई। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम दोस्त इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो आपको आज मैसर हो रही हैं, हमें आज मैसर हो रहे हैं स्नॉकल्स, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई हैं और एक जर्मन कंपनी के इन्वॉल्वमेंट से इसको गालिबन इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें तमाम नेसेसरी फीचर्स मौजूद हैं और कॉन्ट्रैक्टर की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो न सिर्फ इसको मेंटेन करे बल्कि हमारे स्टाफ को भी ट्रेन करे ताकि इस मशीनरी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। सूबाई वजीर बल्दियात मुबीन जमाली बोले, हमारे पास वसाइल और इख्तियारात का फुकदान है। हमारे एसए साहब ने कहा कि बजट की शॉर्टेज थी, लेकिन ये उस कंपनी ने मजीद डील करने के लिए अपनी प्राइस को तकरीबन 15 to 20% पे ले आए हैं और वो इसी हिसाब से, और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आगे जाके किसकी ज़रूरत है और मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ। 3 स्नार्कल्स कराची जबकि एक हैदराबाद, लाड़काना और सिंध के दीगर इजला को दी गई हैं। स्नार्कल्स 32 मीटर की बुलंदी तक कारामद हैं। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में कायम फ्लैट में सिलेंडर धमाका, धमाके में 3 अफराद जख्मी, खवातीन भी शामिल हैं। सलमान सलीम की रिपोर्ट। कराची में एक और सिलेंडर धमाका, लियारी खड्डा मार्केट में कायम फ्लैट में गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में एक शख्स और 2 खवातीन झुलसकर जख्मी। मोहल्ला के मुताबिक वाकया 1 बजे के करीब पेश आया। धमाके के बाद घर में आग लग गई जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। बहुत आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने बोला कि बिल्डिंग गिर रही है। हम लोग तो ये सोच के फिर देखा कि आग लगी हुई थी पहले मंजिल पे, तो उठ के हम लोग चले गए तो बंदे पूरे जले हुए थे। भाई दरवाज़ा तोड़ के हम लोग अंदर गए। अचानक से आवाज़ आई जो है ना धमाके की, पता नहीं चलता था। नीचे मिट्टी गिरी, देखा तो ऊपर आवाज़ आ रही थी रोने की। इलाका मकीन ने हादसे के जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। उनका कहना है कि गैस की तवील बंदिश की वजह से गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना मजबूरी है, जिसके बायस ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं। कैमरामैन मुईद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। सरकारी स्कूलों में 12,80,000 तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सिंध हाई कोर्ट में सूबे के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी से बड़ा इंकशाफ सामने आया है। अदालत ने 2 माह में फर्नीचर खरीद कर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। अदालत ने सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करने का हुक्म दिया है। जामे एनईडी यूनिवर्सिटी बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। तलबा पानी, बिजली और फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार किए। तफसीलात सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। एनईडी यूनिवर्सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ यूनिवर्सिटी में आईटी और आईओटी नुमाइश रखी गई, जिसमें तुलबा और असातिज़ा समेत अहम शख्सियात शरीक हुए। कोर्स इंचार्ज डॉक्टर हैदर ने नुमाइश का मकसद बयान किया। ये एग्जीबिशन बेसिकली हम एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो इनलाइन कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम को जदीद तकाज़ों की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम मसनूई ज़हानत एंड आईओटी का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फ़ाइनल ईयर के करिकुलम में पढ़ाया जाता है। तो ये एग्जीबिशन लास्ट ईयर भी हुई थी, इस दफ़ा इसका 2nd वर्जन है हमारा, जो कि फ़ाइनल ईयर में ऑफ़र किया जाता है। और इस एग्जीबिशन में बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट डाटा सेट पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाते हैं, एआई लगाते हैं, और उसके साथ साथ ये आईओटी के प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। नुमाइश में यूनिवर्सिटी के तुलबा ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए, जिन्हें मेहमानों ने सराहा। तुलबा ने भी नुमाइश में आने वालों को अपने अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। जो हमने अभी प्रोजेक्ट आज डिस्प्ले पे लगाया, इट्स ऑटोमेटिक वाटर टैंक फिलिंग सिस्टम। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हम अपनी ह्यूमन लाइफ को थोड़ा ईज़ बनाएं और छोटी मोटी जिम्मेदारियों से आज़ाद करके प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस करें। हमने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर सेंसर्स और एक्चुएटर्स को जो इंटीग्रेट किया है। इसका काम ये है कि जैसे आपने घर में देखा होगा कि जो है फैंस जो होते हैं हमारे एग्जॉस्ट फैन, वो एनी टाइम चलते रहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट का मसला होता है। तो इसमें हमने ये करा है कि जो हमारे सेंसर्स हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज पे जब आएगा CO2 को डिटेक्ट करेगा, तब वो हमारे जो फ़ैन ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये हमारा पावर हाउस है, अंदर हमने फ़ैन और एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। द मेन पॉइंट इज़ जिस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ़ैन खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे
अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो दूसरा फ़ैन भी खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर अगेन नॉर्मल इजी टेम्परेचर होगा तो खुद ब खुद वो फ़ैन और वो दोनों बंद हो जाएंगे। तकरीब में शरीक तुलबा का कहना था कि दुनिया अब बहुत जदीद हो गई, ताहम IT से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। कराची की जामे NED में 200 तालिबे इल्मों को माजी स्कॉलरशिप तकसीम कर दी गई। स्कॉलरशिप तकरीब में जामिया के साबिक तालिबे इल्मों समेत NED एलुमनाई एसोसिएशन के सदर आसिम मुर्तज़ा खान ने भी शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया NED का अहसन इक़दाम, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 200 तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप से नवाज दिया गया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की सदारत वाइस चांसलर जामिया NED प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी ने की। तुलबा से खिताब में उनका कहना था कि ये स्कॉलरशिप किसी तालिब इल्म पर एहसान नहीं है। उम्मीद है कि काबिल बनकर आप भी मुस्तकबिल में दीगर तुलबा की मदद करेंगे। बच्चों, ये आप पे कोई एहसान वहसान नहीं किया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जो अपना एहसान उतार रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, और आपको ये जिम्मेदारी महसूस करनी होगी कि ऐसे वक्त पर आपके सीनियर्स ने आपकी रहनुमाई की थी, और ये आप पर फर्ज है कि आने वाले फसलों में और आने वाले बच्चों को इसी तरह इस एहसन तरीके से खूबसूरती से उनकी मदद करते हैं। माजी स्कॉलरशिप फंड के बानी इंजीनियर आफ्ताब रिजवी और रजिस्ट्रार जामिया NED सैयद गजनफर हुसैन ने कहा कि स्कॉलरशिप फंड के तहत हर साल 100 बच्चों का इजाफा किया जाएगा। पिछले साल हमने 100 लोगों को स्कॉलरशिप दी, इस दफ़ा 100 को दिए, तो आप समझे कि पिछले साल वालों को एक दफ़ा और दिए तो 300 बच्चा पढ़ रहा है इस वक्त, और हमारा टारगेट है कि हम 1000 बच्चा पढ़वाएं कराची का, फ्री में इंजीनियरिंग कराएं, ताकि आइंदा चल के वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन करे, माँ बाप का भी नाम रोशन करे। 200 बच्चों को माजी फ़ंड से स्कॉलरशिप दी गई है। ये माजी फ़ंड जो है ये हमारे एक एलुमनाई डॉक्टर मतलब आफ्ताब रिजवी साहब की जहन की सोच का आगाज़ का कहिए। बेसिकली ये तमाम जो हमारी एलुमनाई है वो कहते हैं कि आज हम अगर दुनिया में इस आला मकाम पर हैं तो ये NED का कंट्रीब्यूशन है। तकरीब के इख्तिताम पर अब्दुल जब्बार सांगी ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।